Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions regarding our history section. So, without any further ado, let's start today's session. The very first question is current affairs urea gold. It is a kind of urea that is fortified with sulfur. It is indeed correct statement. तो ये याद रखना सल्फर से fortified है. The second is it ensures a gradual release of nitrogen. Yes, it is also correct. So correct answer is both 1 and 2. Some more important things regarding urea gold. A alternative term which is not equivalent to urea gold but neem coated urea. So these particular two things are being propagated by our government of India, but there are some lacunas in this particular neem coated urea, and that's why now urea gold to promote the alternative fertilizers like the sulfur content in the soil. So to promote the use of sulfur content in the soil, the urea gold has been launched. Second thing regarding the urea fertilizer is it is controlled by government of India. So urea fertilizer prices are controlled by government of India. But now what is the current affairs of 2024? The rest of the fertilizers which are under nutrient based subsidy scheme, now their prices will also be indirectly controlled. And how? The government will analyze that no fertilizer company is gaining from excessive profits. It means the government will ensure the range of, I don't think this is the correct number, but 2 to 11% of the profit. Only this particular range will be allowed by the government of India. If excessive profits are made by the fertilizers company, then there will be heavy fine over them. So indirectly prices of other fertilizers than urea are now being controlled by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आप याद रखना. द सेकेंड इज रिगार्डिंग मोपला और मपिल्ला राइजिंग्स. तो ये हमेशा क्या होता है, मोपला केरला में है ना, एंड 1920s आई थिंक 20s था, ऐसा ही था कुछ टाइम पीरियड. द मोपलाज और मपिल्लाज वर द डिसेंडेंट्स ऑफ अरब ट्रेडर्स हु हैड सेटल्ड इन द मालाबार रीजन. सो मालाबार रीजन इन केरला. द मोपलाज मेन टारगेट्स वर द ब्रिटिशर्स. अच्छा, यही स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाती है. दे वर नॉट ब्रिटिशर्स बट दे वर हिंदू लैंडलॉर्ड्स who deprived them of their customary right to cultivate the land. So this is incorrect. Correct answer is one only. SNDP पिछले क्लासेस में भी हमने बात की थी. SNDP श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना इन केरला. वन गॉड वन अर्थ ऐसे कुछ, वन रिलीजन, तो वन गॉड ऐसे करके इन्होंने कुछ बोला था, वन रिलीजन. तो ये PYQ भी है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन बोलता है ये, तो हमारे श्री नारायण गुरु बोलते हैं. अंडरस्टूड. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास बाई श्री नारायण गुरु स्वामी. तो आई थिंक ये मद्रास में तो नहीं था, केरला में था, तो मेरे को तो गलत लग रही है स्टेटमेंट. दिस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट अ नंबर ऑफ टेम्पल्स डेट वर ओपन ओनली टू एजावा कास्ट टू काउंटर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन. ऐसा कुछ नहीं था. एंड येस, दीज वर SNDP was particularly focused on Ezhava caste, and this is a temple entry movement, but they will not construct new temples that are exclusively for lower caste. No, the temples, Hindu temples, mainstream Hindu temples, which prohibit the lower caste from entering them. So SNDP was created to negate or to protest against these rules. Understood? So which of the following is not correct? Both are not correct. अच्छा, कन्फेडरेसी और मराठा एम्पायर में दिया हुआ है. सो पी से याद कर लो. पेशवाज ऑफ पुणे सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हमारे पास. भोसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सो दिस इज़ करेक्ट. गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड होलकर्स ऑफ इंदौर. सो सारे गलत हो गए ना, ये सिंधिया है बस ग्वालियर में. और ये तो अभी ज्योति राधा सिंधिया हमारे MP भी हैं शायद से, तो ग्वालियर से ही हैं. तो देख लेना, ये सेकंड ओनली वन इज़ करेक्ट, करेक्टली मैच, और सारे गलत हैं. हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856. अच्छा, 1829 में क्या हुआ था?
हमारे सती प्रोहिबिशन, ठीक है। देन 1856 में रीमैरिज हो गई थी। तो देखिए पहले मरने से बचाएंगे, उसके बाद मैरिज का देखेंगे। अब इसके बाद जो भी आया था ना, जब भी आया था, वो क्या करेगा, पहले मरने से बचाएगा। सो फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज बैंड। उसके बाद फिर मैरिज का आएगा, तो चाइल्ड मैरिज की एज इंक्रीज़ हुई थी। आई थिंक पहले तो बाद में तो शारदा एक्ट आया था, बट उससे पहले भी एक कोई एक्ट आ गया था, BM मालाबारी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, और उसके बाद शारदा एक्ट भी आया था, ठीक है। ये शायद से 1870s का आया था, मुझे याद आ रहा है, इन्फेंटिसाइड वाला। सो पहले हमेशा मरने से बचाएंगे, बाद में तो शादी वादी का देखेंगे। तो पहले मरने से बचाया, सती प्रोहिबिशन 1829, फिर 1856 में विडोज़ रीमैरिज एक्ट, फिर वापस पहले बच्चों को मरने से बचाओ, इन्फेंटिसाइड एक्ट आया, फिर उनके बाद उनकी शादी की एज बढ़ा दो, ठीक है। वे हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 was passed by British government to suppress demands of legalizing widow remarriages in India। भाई ऐसा कुछ नहीं था, कौन डिमांड कर रहा था रीमैरिज की? हिंदू सोसाइटी was very traditional society, no one is demanding that we should get widows remarried, but it was the stance of the Britishers that we have to modernize the traditional society of India, understood, and that's why it will eventually leads to 1857 revolt, such kind of interventions by Britishers in the Hindu society। तो ये दिक्कत हुई थी, अंडरस्टूड। इन बंगाल विडो रीमैरिज रिफॉर्म अचीव्ड ह्यूज सक्सेस। ये भी कुछ ऐसा नहीं था, मैंने बोला तो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। ऊपर से इफ़ यू आर पुशिंग रिफॉर्म्स फ्रॉम अपसाइड, मतलब आप ऊपर से आप नीचे ला रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है भाई कभी भी, अंडरस्टूड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नीदर वन नॉट टू। निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद फाउंड किया था, और किसके रीन में किया था भाई? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। 3 हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना, ये सारी बर्ड्स हैं, ऐसा भी क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है। तो बुगुन लियो चिचला, हिमालयन क्वेल, जेडोन्स कोजर। तो ये जो 3 हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। छोटी क्लास रखेंगे आज की। होप सो आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।